Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arahan College. In last lecture, we were studying about the Hegel. In that, we studied his journey from Bern 1793, 1796 and Frankfurt, that is 1797, 1801. Having received his theoretical certificate from the नहीं ये भी हो गया था. We were studying about the Jean Bamberg and Nuremberg. In 1801, Hegel came to Jena at the encouragement of his friend Schelling. See, उसके फ्रेंड की वजह से वो कहाँ जिना में आया, राइट. वहाँ पे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जिना, ये पोजीशन थी उसकी. उसका सिक्योर्ड काम था एंड ही वॉज एन अनसैलरीड लेक्चर. आफ्टर सबमिटिंग द इनॉग्रल डिसर्शन द ऑर्बिट प्लैनेटेरियम, यहाँ पे उसने क्या किया, आर्ग्यूमेंट किया. He criticized argument that asserted based on Bobbe's law or other arbitrary choice of mathematical series. उसमें क्या बोला कि बाबा एक छोटा प्लैनेट भी है मार्स एंड जुपिटर के बीच में. उसमें माइनर प्लैनेट का नाम है सीरस विदाउट दैट ऑर्बिट, राइट. दैट वाज ऑन 1st January 1801. Later in the year, Hegel's first book, The Difference Between Fichte's and Schelling System of Philosophy, was completed. He lectured on logic and metaphysics and gave lecture with Schelling on the introduction to the idea and limit of true philosophy. In 1802, Schelling and Hegel founded the journal Christian Journal The Philosophies, to which they contributed until the collaboration ended when Schelling left for Würzburg in 1803. अभी 1805 में the university promoted Hegel to a position of extraordinary professor after he wrote a letter to the poet and a minister of culture John Ha. But उसका क्या हुआ, उसका first he attempted to enlist the help of the poet and translator Johanna Heinrich to obtain a poet at the Rheinland University of Hamburg, but he failed there. With this financing drying up quickly, अब हेगल के पास इतना फाइनेंस तो था नहीं. अब उसका फाइनेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है. हेगल क्या था, ही वॉज अंडर द प्रेशर, और उसको जो उसने एक बुक लिख रहा था, राइट, वो उसको कंप्लीट करनी थी. तो अगर वो पब्लिश होती है तब भी उसके पास कुछ पैसा आएगा. हेगल वॉज putting the finishing touch to it, the Philology of Spirit, as Napoleon engaged Persian troops on 14th October 1806 in the Battle of Jena on a plateau outside the city. On the day before the battle, Napoleon entered the city of Jena. Hegel recounted his impression in a letter to his friend Frederick Emmanuel Netheram. उसने लेटर के बोला कि बाबा मैं देख रहा हूँ ये कितना बड़ा इतने एक अच्छा सीन देख रहा हूँ जहाँ पे क्या एक अकेला पर्सन सब कुछ कर रहा है, हॉर्स पे आ रहा है और पूरे वर्ल्ड तक रीच कर रहा है एंड ऑल, ये सब उन्होंने देखा. पिन कार्ड 2000 नोट्स दैट हेगल्स कमेंट टू निथैम इज ऑल द मोर स्ट्राइकिंग सिंस ही हैड ऑलरेडी कंपोज्ड द क्रूशल सेक्शन ऑफ द phenomenology in which he remarked that the revolution had now officially passed to another land that would complete in thought what the revolution had only partially accomplished in practice. अब क्या हो गया, मार्च 1807 में क्या हो गया, हेगल moved to Bamberg where Needham had declined and passed on to Hegel an offer to become editor of a news. The Bamberg, अभी कुछ एम्प्लॉयमेंट तो था नहीं, तो उसने ये जॉब क्या है फटाक से ले लिया. तब भी उसको खबर, और उसकी जो एक उसको जो बेटा हुआ रहता है फ्रॉम क्रिस्टेनियन हु वॉज एन, जो उधर लैंड लेडी थी, उससे उसको एक बेटा होता है, ये खबर उसको आती है. तो उस ये क्या करता है, जब ये बैम्बर्ग आया तो वो उसकी हेगल अपनी वाइफ और बेटे को जिन्ना में ही छोड़ के आया है. In November 1808, Hegel was again through Netheram appointed headmaster of a gymnasium in
Nuremberg, a post he held until 1816. अभी हेगल मैरिड मारिया, राइट, जो डॉटर थी ऑफ अ सेनेटर. उसी वक्त उसने उसका सेकंड पब्लिशन किया, दैट वाज ऑन द साइंस लॉजिक एंड ऑल. और तब उसको 2 बच्चे हुए, एक का नाम था कार्ल और एक का नाम था इमैनुअल. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, Heidelberg and Berlin, that is 1816-1831. Having received offer of a post from the University of Erlangen, Berlin and Heidelberg, Hegel chose Heidelberg, where he moved in 1816. See, अभी यूनिवर्सिटी उसको ऑफर आए, एलेंगन यूनिवर्सिटी से, बर्लिन से और हेडिलबर्ग, ये तीनों यूनिवर्सिटी से उसको ऑफर आए. तो what Hegel did, Hegel chose Heidelberg, where he moved in 1816. Soon after, his eliminate son Edward Fischer joined the Hegel's household in April 1817. और अभी उसका बेटा 10 साल का हो गया था, एडविक फिशरर, राइट, 10 साल का हो गया था, वो भी उसके साथ रहने आ गया. हैविंग स्पेंड टाइम इन एन ऑर्फनेज आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर क्रिस्टेनिया. और वो 10 साल का बेटा उसके साथ क्यों आया, क्योंकि माँ मर गई थी, लाइक हेगल की वाइफ, शी वॉज क्रिस्टेनिया, शी वॉज डेड एंड वो बच्चा ऑर्फनेज में था, इसलिए फिशरर को क्या था, उसका बेटा उसके साथ रहने लग गया. इन 1817 हेगल पब्लिश द एनसाइक्लोपीडिया. अब क्या हो गया, हेगल पब्लिश द एनसाइक्लोपीडिया ईयर of the philosophical science in the outline as a summary of his philosophy for students attending his lecture at Heidelberg. See, 1817 में क्या किया, excuse me, I'm sorry, just a minute. Okay, sorry. 1817 में क्या हुआ, Hegel published the Encyclopedia of the Philosophical Science in outline as a summary of his philosophy for the, उसकी जो भी उसकी समरी के लिए उसने एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश किया, किसके लिए, जो स्टूडेंट्स थे उसके, जो उसके लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे एट हेडिलबर्ग. इन 1818 हेगल accepted the renewed offer of the chair of philosophy at the University of Berlin, which had remained vacant since Johanna Gottlieb Fritzsche's death in 1814. इन 1818 में क्या हो गया, हेगल क्या हुआ, उसने एक नया ऑफर एक्सेप्ट किया एज अ चेयर ऑफ फिलोसॉफी, लाइक वो चेयर पर्सन ऑफ फिलोसॉफी बन गया, दैट वाज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन. हेगल पब्लिश्ड हिज फिलोसॉफी ऑफ राइट्स. सी, हेगल ने क्या किया, हेगल पब्लिश्ड हिज फिलोसॉफी ऑफ राइट 1821. Hegel devoted himself primarily for delivering lectures. His lectures on aesthetic, the philosophy of religion, the philosophy of history, and the history of philosophy were published posthumously from students' note. यहाँ पे क्या हो गया है, हेगल डिवोटेड हिमसेल्फ. हेगल क्या कर रहा था, उसने अपना पूरा टाइम लेक्चर देने में लगाया. लेक्चर ऑन एस्थेटिक, लेक्चर ऑन फिलोसॉफी देता था, फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन भी देता था, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी, इन सब पे लेक्चर देता था. और ये सारे लेक्चर, दिस ऑल लेक्चर्स वर पब्लिश्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स नोट्स. हिज फेम स्प्रेड एंड हिज लेक्चर्स अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर जर्मन एंड बियॉन्ड. सी, हिज फेम स्प्रेड, सी, उसके जो लेक्चर जो पब्लिश होने लग गया, वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गया. और उसके जो लेक्चर्स थे वो इतने अच्छे थे, इतने अट्रैक्टिव थे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्ट करने लगे और वो सब जर्मन की ओर आने लग गए. मतलब देखो कितना अच्छा प्रोफेसर रहेगा, कि उसको 3 यूनिवर्सिटी ने उसको ऑफ़र किया था, उसने हेडिलबर्ग इसका एक्सेप्ट किया था ऑफ़र सिर्फ. मूविंग फॉरवर्ड,
In 1927, he made 2 trips to Weimar, where he met Goethe and to Bruce Lee, the Northern Netherlands, Leipzig, Vienna, Prague and Paris. अभी इन 1927 तक उसने वेबनार 2 ट्रिप किए जहाँ पे ही मेट गॉथे एंड टू ब्रूस ली. अभी वो गॉथे एंड ब्रूस ली को मिला. देन उसने फिर नॉर्थन नेदरलैंड गया, लैपिस गया, वेना गया, प्राइक्यू एंड देन पेरिस. इन सब जगहों पे वो गया था. जस्ट एज इन बिजनेस ट्रिप बोलो, उस वजह से गया होगा. तो भी वो हेगल was appointed university rector of the university in October 1829, but his term ended in September 1830. See, Hegel was appointed university rector. See, अभी हेगल को अपन यूनिवर्सिटी रेक्टर बोल के अपॉइंट कर रहे हैं. इट वॉज इन द अक्टूबर 1829, बट हिज टर्म एंडेड इन सितंबर 1830. देखो 1829 में उसको अपॉइंट किया यूनिवर्सिटी रेक्टर बोल के, बट उसका टर्म कब ख़त्म हो गया? सितंबर 1830. मतलब 1 साल भर भी नहीं रहा वो रेक्टर के नौत पे. राइट, जल्दी एक्सपायर हो गया उसका टर्म. वो हेक्टर वॉज डीपली डिस्टर्ब बाय द रायोट्स फॉर रिफॉर्म इन द बर्लिन इन दैट ईयर. सी, हेक्टर क्या था, हेगल क्या था, वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड. वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था हेगल. किसकी वजह से? उस वक्त क्या है, बहुत ज़्यादा रायोट्स चल रहे थे बर्लिन में. उस साल बर्लिन में बहुत ज़्यादा रायोट्स थे और इन सब से हेगल वॉज क्वाइट डिस्टर्ब्ड. इन 1831 फेडरिक विलियम III डेकोरेटेड हिम with the order of Red Eagle, 3rd class for his service to the Persian state. 1831 में क्या हुआ? फेडरिक विलियम III he decorated him with the order, मतलब उसको सम्मान किया ऑर्डर के साथ, एज अ रेड ईगल एंड अ 3rd class सर्विस टू द पर्सियन स्टेट. In August 1831, a cholera epidemic reached Berlin and Hegel left the city. See, in August 1831 में क्या हुआ? क्लोरा. अभी उस वक्त बहुत बीमारियाँ रहती थी और उन बीमारियों के ऊपर कोई दवा भी नहीं रहती थी. क्लोरिया एपिडेमिक बोल के आई थी जो बर्लिन में थी. एंड हेगल लेफ्ट द सिटी टेकिंग अप लॉजिंग इन क्रूसबर्ग. हेगल ने क्या किया? बर्लिन छोड़ दिया और यहाँ पे क्या हो गया? अभी बीमारी आ गई. तो क्या हो गया? उसने बर्लिन छोड़ दिया एंड ही हेगल लेफ्ट फॉर द क्रूसबर्ग, जहाँ पे वो लॉजिंग के दौर पे रहता था. नाउ इन अ वीक स्टेट ऑफ हेल्थ हेगल सेल्डम वेंट आउट. अभी हेगल क्या था, कभी तो भी बाहर जाता था. क्यों था? क्योंकि एक तो मेंटल स्टेट भी उसका स्टेबल नहीं था और उसके पास इतना बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था. एज द न्यू सेमेस्टर बिगैन इन अक्टूबर, हेगल रिटर्न टू बर्लिन in the mystic belief that the epidemic had largely subsided. As the new semester began, अब क्या हो गया? अब नया सेमेस्टर शुरू हो गया. अब नया सेमेस्टर शुरू हो गया अक्टूबर में. तो क्या हो गया? हेगल बर्लिन वापस आ गया विद द थॉट कि बाबा ये जो बीमारी आई है एपिडेमिक हिटेड कम, इससे ये बीमारी कम हो गई होगी बोल के आया. बट हेगल 14 नवंबर को उसका डेथ हो गया था ये कॉलेरा बीमारी से. वैसे आज अपने यहाँ पे कोविड बीमारी है. उस वक्त आज कोविड के लिए कोई दवाई नहीं है अपने पास, है तो भी इतना इफेक्टिव नहीं है. उस वक्त भी क्लोरेरा बोल के तब एक ये था, डिसीज था, उसके ऊपर भी कोई दवाई नहीं थी उस वक्त. ना वर्क ऑफ हेगल. अब वो बीमारी से इसका हेगल का भी डेथ हो गया था. नाउ विल लुक एट द वर्क्स ऑफ हेगल. ड्यूरिंग द Nuremberg years, Hegel met and married Maria wu Trucha, 1791-1855. See, जब हेगल न्यूरेमबर्ग
यहाँ पे काम कर रहा था. हेगल met and married Maria. हेगल ने मारिया के साथ शादी की in 1791-1855. They had 3 children, a daughter who died soon after birth and 2 sons, Karl and Emil. जब उसने मारिया के साथ शादी की तो उसको मारिया से 3 बच्चे हुए. एक लड़की थी और 2 लड़के थे. लड़की का क्या है, जस्ट शी वॉज बॉर्न शी वॉज डेड, द गर्ल वॉज डेड. और लड़के का क्या था, 2 लड़के थे. अपन ने देखा 2 वन वॉज द कार्ल 1813 1901 तक था, और सेकेंड वॉज द एमिली दैट इज फ्रॉम 1814 to 91. Hegel had also fathered an illegitimate son, Ludwig, to the wife of his former landlord in Jena. See, हेगल को एक और बेटा था लुडविग से, एक और बेटा था जिसको वो जिन्ना में ही छोड़ के आया था. वो लैंडलॉर्ड के साथ उसने शादी, लवर थी लैंडलॉर्ड उसकी, और उससे उसकी शादी वगैरह हुई थी. While at Nuremberg, Hegel published over a period of several years the science of logic. See, while at Nuremberg, Hegel published over a period of several years. At Nuremberg क्या है, Hegel published over a period of several years the science of logic. उसने बहुत सालों तक ये पब्लिश करता रहा, the science of logic. In 1816, Hegel accepted a professorship in philosophy at the University of Heidelberg. See, in 1816 क्या हो गया, हेगल ने क्या किया, accepted a professorship in philosophy at the University of Heidelberg. Soon after, he published in summary form a systematic statement of his entire philosophy entitled Encyclopedia of the Philosophical Science, which was first translated into the English in 1959 and included the shorter logic as part 1. See, soon after क्या हो गया, he published in summary form. उसके बाद क्या हुआ, उसने summary form में publish किया a systematic statement of his entire philosophy. एक systematic statement के साथ उसने किया of his entire philosophy, that is in the Encyclopedia of the Philosophical Science, which was first translated in English. जो philosophical science में लिखा था वो अलग लैंग्वेज में था, उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया in 1959 and included the shorter logic and includes the shortest logic as part 1. The encyclopedia was continually received up till 1827. See, the encyclopedia was continually revised up till 1827 and the final version was published in 1830. See, अभी उसके बाद क्या हुआ, ये एनसाइक्लोपीडिया क्या है, कंटिन्यू रिवाइज होता रहा टिल 1827 और फिर फाइनली वो पब्लिश हुआ, उसका फाइनल वर्जन आया, फाइनली पब्लिश्ड होके एनसाइक्लोपीडिया कब आई, 1830 में. इन 1818 हेगल वॉज इन्वाइटेड टू टीच एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन. राइट, अभी अपने देखा पहले भी लाइक 1818 में हेगल क्या हुआ, हेगल वॉज इन्वाइटेड टू टीच एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन. वो बर्लिन के यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया, वेर ही वॉज टू रिमेन, जहाँ पे उसको रहना था. बट क्या हो गया, ही डाइड इन बर्लिन ऑन November 14, 1831 ड्यूरिंग अ क्लोरेरा एपिडेमिक. ये क्लोरेरा नाम की बीमारी आई और he was dead in Berlin on 14th November 1831. The last full-length work published by Hegel was The Philosophy of Right 1821. See, उसका last published Hegel का क्या हुआ था, was The Philosophy of Right 1821. Although several sets of his lecture notes supplemented by students' notes were published after his death. See, उसके बाद भी बहुत से उसके बच्चों के पास उसके नोट्स थे, वो नोट्स वो सारे पब्लिश हुए उसके डेथ के बाद, वो भी सारे पब्लिश हुए. पब्लिश लेक्चर इंक्लूड द फिलोसॉफी ऑफ फाइन आर्ट्स,
सी पब्लिश्ड लेक्चर में क्या था, द फिलोसॉफी ऑफ फाइन आर्ट्स लिखा था, दैट वॉज इन 1835-38 एंड नेक्स्ट वॉज द लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी और दूसरा था लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी 1833-36 lectures on the philosophy of religion 1832 and the lectures on the philosophy of history 1837। सुनो, उसके डेथ के बाद है ना ये सारी चीज़ें पब्लिश हुई थी, लाइक द फिलोसॉफी ऑफ फाइन आर्ट, लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी, लेक्चर्स ऑन द फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, लेक्चर्स ऑन द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, ये सब पब्लिश हुआ था। नाउ विल मूव टूवर्ड्स द next point, that is Hegel's idealism। Absolute idealism, brought forth by Hegel, has had a major impact on our society। See, absolute idealism, like proper absolute idealism रहना चाहिए, ये सब किसने लाया सामने? It was brought forth by Hegel। और उस जो उसने सामने लाई थी ये बात आइडियलिज्म, वो सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। दिस फिलोसॉफी फॉर्म्स द बेसिक फॉर द लेटर डेवलपमेंट ऑफ मार्क्सिस्ट एंड द इवोल्यूशनरी थ्योरी। सी दिस फिलोसॉफी फॉर्म्स द बेसिक, ये जो फिलोसॉफी थी, दिस फिलोसॉफी फॉर्म्स द बेसिक फॉर द लेटर डेवलपमेंट ऑफ मार्क्सिज्म एंड द इवोल्यूशनरी थ्योरी। Hegel's desire was to present an all-encompassing theory to bridge the finity with the infinity। See, हेगल की क्या थी इच्छा? हेगल की एक इच्छा थी कि वो जो भी थ्योरी लिखे वो सारी एम्पास करे, सारी अच्छे से कंबाइन करे, ताकि ये जो ब्रिज है फाइनाइट विद द इन्फानाइट, ये जो ब्रिज था ये कम हो जाए। मतलब वो जो भी काम कर रहा है वो उसको अच्छे से प्रेजेंट करने की उसकी एक बहुत अच्छी इच्छा थी। He begins with the claim that sense knowledge cannot explain itself, so we must turn inward to our understanding to arrive at the true source of philosophical। See, he begins with the claim that, अब वो कैसे शुरू करता है? वो एक क्लेम करता है, सेंस नॉलेज कैनॉट एक्सप्लेन इटसेल्फ, वी मस्ट टर्न टूवर्ड्स आवर अंडरस्टैंडिंग। जो अपनी सेंस नॉलेज है वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आपको किस तरफ से जाना है, किस तरफ से आना है। हर इसमें एक फ़िलोसॉफिकल नॉलेज रहता है, मतलब आप जो भी काम करो, जो भी कुछ करो, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो फिलोसॉफी रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो थॉट रहना चाहिए। द माइंड बिकम्स द सुप्रीम प्रोसेस। अब ये जो माइंड था ना, द माइंड बिकम्स द सुप्रीम प्रोसेस। Unlike the philosopher before him, Hegel takes the stand that we need a new way of thinking। See, unlike the philosophers before, see, अभी पहले के जो फिलोसोफर्स थे, हेगल वैसा ही एक स्टैंड ले रहा है, हर किसी को नए तरीके से सोचना चाहिए, वही चीज़ उसी तरीके से नहीं सोचना चाहिए, अपने को चीज़ें नए तरीके से सोचना चाहिए। We can take the irrational approach of contradicting ourselves। See, we can take the irrational approach, अपन irrational approach ले सकते हैं ताकि अपन contradict कर सकते हैं। This is precisely the method we need to adopt। See, ये एक तरीका है जो अपन ने adopt करना चाहिए। Thus, Hegel bases his entire thinking on the dialectical method। Thus, हेगल का थ्योरी है ये किस पे है? एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द डायलेक्टिकल मेथड। एन अर्ली इन्फ्लुएंस फ्रॉम फिट्ची हेल्प टू फॉर्म दिस मेथड। सी, एन अर्ली इन्फ्लुएंस फ्रॉम द फिट्ची help to form this method। For Fichte, the non-ego must be opposed to the ego। See, for Fichte, the non-ego must be opposed to the ego। We see this contradictory element in his work। ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी चल रहा है, नॉन ईगो, ईगो, ये सारा कॉन्ट्रडिक्टरी जो चल रहा है, ये अपन सारा उसके काम में अपने को दिख के आता है। हेगल टेक्स फिचेस एब्सोल्यूट ईगो। अब ये जो हेगल है, ही टेक्स द फिचेस एब्सोल्यूट ईगो
and turn it into the real universe devoid of all personality and subjective property. See, Hegel takes fictitious absolute ego and turn it into real universe devoid of all personality and subjective properties. His rename the he renames the absolute ego the absolute spirit. ये जो absolute ego था उसने उसको एक नया नाम दे दिया, that is the absolute spirit. Thus, Hegel uses the dialectical method to develop the absolute spirit. तो हेगल क्या यूज़ करता है यहाँ पे? डायलेक्टिकल मेथड यूज़ करता है ताकि he can develop the absolute spirit. This method is also used to explain nature and spirit. यही मेथड से अपन क्या करते हैं? नेचर और स्पिरिट भी एक्सप्लेन करते हैं. We'll wind up our lecture here. In next lecture, we'll continue with the Hegel's idealism. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.